রামের নাম নিতে দেয় না। রাজ্যে হিন্দুদের অবস্থা নিয়েও তৃণমূলকে খোঁচা মোদীর। পাখির চোখ বাংলা তা আগেই ঠাড়ে ঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। বঙ্গে আকসার আসছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। বাংলায় চতুর্থ দফা নির্বাচনের আগে ফের প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালেই ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার সভায় যান তিনি। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এর সমর্থনে সভা করেন তিনি। সেখানেই মোদী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রামের নাম নিতে দেয় না তৃণমূল সরকার। রামনবমী উৎসব পালন করতে দেওয়া হয় না। তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট রামনবমীর বিরুদ্ধে। এমন লোকজনদের হাতে এই মহান দেশ তুলে দেওয়া যায় কি, প্রশ্ন তোলেন মোদী। এরপরেই সভামঞ্চ থেকে জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলেন তিনি। এদিনের সভা থেকে ফের মোদীর মুখে উঠে আসে গ্যারেন্টির কথা। এদিনের সভা থেকে 5টি গ্যারেন্টি দিয়ে যান মোদী। সেই গ্যারেন্টিগুলির মধ্যে অন্যতম, বাংলায় রামনবমী পালনে বাধা দেওয়া যাবে না, রাম পুজোতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এটাই মোদীর গ্যারেন্টি বলে উল্লেখ করেন তিনি। ব্যারাকপুর থেকে ক্যামেরায় বিশ্বজিতের রিপোর্ট, আরজিএন নিউজ। बंगाल वासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वासी बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में
इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে তিনি চলে আসবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এইখান থেকে জোরে হাততালি দিয়ে একবার স্বাগত জানান। এই ভাটপাড়ার পূর্ণভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জোরে হাততালি দিয়ে একবার স্বাগত জানিয়ে দিই। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের প্রার্থী লড়াকু নেতা মাননীয় অর্জুন সিং, যিনি দ্বিতীয়বারের জন্য এই ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে আপনাদের আশীর্বাদে উপহার দিতে চলেছে, সেই অর্জুন সিংকে জোরে হাততালি দিয়ে আপনারা আপনাদের সমর্থন জানাবেন, আপনারা আপনাদের আশীর্বাদ জানাবেন। উপস্থিত সম্মানীয় জেলা সভাপতি মনোজ দা থেকে শুরু করে তার পুরো টিম, আমাদের মাননীয় সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, যিনি পিছনে থেকে পর্দার পেছনে থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজ করেন, উপস্থিত অনল বিশ্বাস, উপস্থিত আমাদের কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বিজয় ওঝাজি, উপস্থিত সম্মানীয় পদাধিকারীগণ, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ দা থেকে শুরু করে অন্যান্য পদাধিকারীগণ, আমাদের যুব মোর্চার যারা কার্যকর্তা আছে সবাইকে আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাই। इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के हेलीकॉप्टर चौपर ऊपर हमारे आकाश में गूंजना शुरू करेगा तो फिर दौड़ा दौड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सभापति सुकांतो मजमदार साहब, हमारे अमिताभ दा जो पार्टी के संगठन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हमारे इस बार अगर इस बार जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिन में हम लोग की सरकार बनेगी, तो ये जो सीएससी की दोनों जगह हैं, इस पर हम केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सिफारिश करेंगे कि इस जगह पर कोई केंद्रीय सरकार का स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाया जाए, या तो एनटीपीसी या किसी भी एजेंसी के द्वारा यहां विद्युत उत्पादन की कोशिश की जाए, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा है क्या जूट मिल जो एनजीएमसी की जूट मिल थी, तमाम श्रमिकों को उनका सारा बकाया मिल चुका है, लेकिन वो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उस पर दावा ठोक रही है। उन जमीनों को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर स्किल डेवलपमेंट हो, वहां जो मजदूर कूली लाइन में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर उन जगहों को डेवलप किया जाए, तो हमारे गरीब श्रमिक जो यहाँ बरसों बरसों से सैकड़ों बरस से यहाँ रोजी रोटी उनको मिल रहा है, वो उनको घर मिलेगा, ताकि इस राज्य में जो लूट मचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, जो यहाँ की सरकार लूटती है, उससे हम बच पाएंगे। और हमारी सरकार, लगता है प्रधानमंत्री जी का चौपर का आगमन हो चुका है,
तो मैं एक बात और सिफारिश करके कहूंगा कि हमारे जूट मिल के श्रमिक भाइयों को 1,000 रुपया पेंशन मिलता है, उसको बढ़ाया जाए ताकि 1,000 से ज्यादा मिले और हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ये हम नया एक आयाम खोल सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए सोचती है, उनके बारे में हमेशा उनके साथ है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि यहाँ माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। एक लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों का शोषण होता है। लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और मुकदमा भी नहीं होता है। हमारी नेत्री फाल्गुनी दी बोल रही थी कि संदेशखाली में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वहां उन लोगों ने संगठित करके आंदोलन भी किया है। महिलाओं का आंदोलन है कि पूरे दुनिया संदेशखाली को जान चुकी है। पूरे दुनिया में संदेशखाली के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उससे महिलाएं जगी है। आज सीए का समर्थन करने के बजाय ममता बनर्जी सीए के विरोध में आवाज उठाती हैं। लेकिन जो हमारे मतुआ भाई, जो हमारे नमोशूद्र भाई, जो हमारे रिफ्यूजी भाइयों की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आज रंग लाई है। आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे सीए का समर्थन करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। এখন আপনার বাড়ি, অফিস এবং দোকানকে সুরক্ষিত রাখুন টোটাল সিকিউরিটি সলিউশনের সাথে। আমরা বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের সিসিটিভি ও সিসিটিভি সংক্রান্ত যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ বিক্রয় করার পাশাপাশি সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যা 24/7 সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে যত্ন সহকারে দোকান, বাড়ি, কারখানা, স্কুল, নার্সিংহোম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শোরুমগুলিতে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হয়। আমাদের ঠিকানা গার্ডেন রিচ, মেটিয়া ব্রুজ, কলকাতা 700024। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 7003047447। লাইক শেয়ার ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ আরটিএম নিউজ ও ফলো করুন ইনস্টাগ্রাম ফলো করুন আমাদের আরটিএম নিউজ। সঙ্গে থাকতে দেখতে থাকুন আরটিএম নিউজ, আপনার এলাকার খবর সবার আগে।